प्रधानमंत्री जी का कहना क्या है कि ये सब जो मैंने आपको इतने सभी कागज दिखाए ये तो ऑथेंटिक है, फिर ऑथेंटिसिटी करो मत बोलो, ये ले लो, नहीं तो आप देख लो, ढूंढ लो, तो ये आपकी है सर। और एक सभापति जी, उपसभापति जी, हकीकत यह है कि हम सांसदों को अंधेरे में रखा गया। हमें सभी जानकारी मीडिया के माध्यम से मिल रही थी और आज भी हमको माध्यम के जरिए ही मालूमात मिल रहे हैं। तो सर, असल में किसी भी इंफॉर्मेशन या जानकारी को पहले संसद के सामने रखना चाहिए और खासकर ऐसे सेंसिटिव मैटर्स में आप अगर हमको अवगत कराएंगे तो क्लैश नहीं होता, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होता। देश के इतने चंद बातें जो नहीं कहना है, आप कहने के बाद हमको भी कहना पड़ता है। तो देश बड़ा है, इसको अगर लेकर आप सबसे राय लेके, मशवरा लेके अगर बढ़े तो देश को अच्छा होगा। सब मैं और एक बात आपको कहना चाहूंगा साहब, सेंसिटिव मैटर्स की चर्चा के लिए हम स्पेशल सेशन की मांग कर रहे थे, तो उस वक्त आप सभी ने कहा कि हम इस बात को, हाँ, जो हमने आपसे रिक्वेस्ट की थी तो आपने ये बात को आप कह रहे थे। अरे तुम कौन होते मुझे बिठाने वाले? अरे मेरे को कोई नहीं बिठा सकता, सिर्फ मेरे लीडर बिठा सकते हैं, मेरे लोग जो चुन के लाते हैं वो बिठा सकते हैं। सर, सिर्फ अभी 5 मिनट लूंगा आपका। आपकी पार्टी का समय जा रहा है, उससे मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है सर। डिप्टी चेयरमैन, हम मांग करते हैं कि देश के सबसे सुरक्षित इलाके में हुई सुरक्षा और इंटेलिजेंस की इन गंभीर खामियों और गलतियों पर समयबद्ध तरीके से जवाबदेही तय की जाए। कारगिल युद्ध खत्म होने के बाद उस समय की सरकार ने कारगिल रिव्यू कमेटी बनाई थी, जिसकी अध्यक्षता खुद विदेश मंत्री जयशंकर के पिता के सुब्रमण्यम ने की थी और उनका ये जो फ्रॉम सरप्राइज टू रिकॉनिंग द कारगिल रिव्यू कमेटी रिपोर्ट, ऐसी एक रिपोर्ट तैयार करो। कहाँ गलती हो गई, क्या हो गई, सब कुछ बाहर आएगा। हर चीज को आप छुपाते रहेंगे तो और मामला बढ़ जाएगा। ये तो उन्हीं के पिताजी ने वाजपेयी के समय पर रिपोर्ट तैयार की थी, तो कम से कम वो कीजिए, उसको ढूंढ निकालिए क्या गलतियां हो गए। तो ये भी आप करने को तैयार नहीं है सर। दूसरा, मैं आपसे विनती करूंगा कि इस कमेटी ने 15 दिसंबर 1999 को रिपोर्ट दी और 23 फरवरी 2000 को इसे दोनों सदनों में रखा गया। Honorable member, please. Sir, I was there. Please. When the external affairs minister speaking. Wait. Sir, 1 minute. 22 April, Deputy Prime Minister of USA, he called Prime Minister after the incident. Sir, sorry. I am quoting yesterday's External Affairs Minister's speech in the Parliament. I quote. Sir, I would like to inform this House. I quote, Anurag, please. I am quoting your minister's stance. Sir, I would like to inform the House that on the 9th May, if there is any wrong in the court, it should be expunged from the record. Any wrong from the court, Sir, it should be expunged. I am having official document. You continue. I am having official document. Continue. Sir, I quote. Sir, I would like to inform the House
that on the 9th May, Vice President J.D. Vance called the Prime Minister, warning of a massive Pakistani attack in next few hours. Prime Minister, in his response, made it very clear, if such an attack happens, it would meet with an appropriate response from our side. That's correct. But the question is, where is your intelligence? American Vice President called Pakistani forces is going to attack. Still, Indian Monetary Fund is going to give the bailout for Pakistan, which was being controlled by America. IMF. Sir, International Monetary Fund. Sir, no. Sir, I am not yielding. Sir, I am not yielding. Sir, I am not yielding. No. You talk to the chair. No, sir. Sir, these are all the confusions. Let us divide into two parts. Pahalgam incident took place. It is a complete, sir, it is a complete intelligence failure. Intelligence failure means you must admit your incompetency of the administration. Yes. Incompetency of the administration. You are incompetent to rule this country. Yes. Our security is prime. People are having no faith upon you. Yes. Number two, first portion is over. Second portion, right? That happened. What was your diplomatic relations? You send all delegations. Sir, don't follow Nervian ideology. You will not. You can't. You are not competent. But please, follow at least your leader Atal Vajpayee, Atalji. What happened in the Kargil? Kargil war was conducted in a sensible manner with a collaborative measures. All stakeholders, including the oppositions, were taken into consideration Vajpayee. After the Kargil war, he appointed a commission, and the commission report was placed before the parliament. This parliament deliberated the commission, what is the don'ts and do's, what are the actions and inactions. Such a fair prime minister is your predecessor. Now you want to reap the legacy of the BJP, but you are completely concealing everything to the parliament. Parliament was completely set aside. 100 and odd people bill is being reflected in this house, but you are avoiding the parliament. Are you a democrat? Am I not entitled to say you are a tyranny? I am not entitled to say you are a dictatorship. Sir, that is what I am telling. Please, I do not want to take more time. But only one thing. Sir, Pahalgam incident is the classic example for the administrative incompetency to deal terrorism. Operation Sindoor is nothing but an incomplete exercise ended with Trump's ceasefire. Just I wanted to show one thing, sir. Still I am confused. Today there are two newspapers. One says, target met, no more ceasefire. Indian Express. One says, Operation Sindoor is not over, only on pause. Sir, ceasefire was announced by the Prime Minister. That itself is a shock to the country. By Trump. But still you are saying, this ceasefire is on pause. We will continue, one minister. Another minister says, our target is over, so no more war. No parliament discussion. Prior to that, what is the result? Sir, please come. Last bit. Sir, I will go for the last one. At least hereafter, you are fighting with, you are claiming that all the nations are with us, but Pakistan is getting membership and elected as vice chairman in the United Nations Security Council to avoid, to control the terrorism. Sir, you are claiming, are you not ashamed? Chief of Army has Pakistani is getting the belt, United Nations Councils to control the terrorism, and you want to label the Pakistan as the sponsor of the terrorism. Sir, please. Please conclude. Please conclude. Hereafter, it is a sensible question. On behalf of DMK, I appeal to everyone, notwithstanding the political affinity, please compel this government and take this confidence of this government
come for a democratic process, discuss everything. Stop this nonsense in the future at least. Thank you, sir. Thank you. Honorable Member Sri E.T. Mohammad Basirji. Sir, thank you very much, sir, giving me this opportunity to speak in this very important. गवर्नमेंट में काम किए, बाहर किए, और पॉलिटिक्स में मैं हूं, और 60 साल मैं पॉलिटिक्स में काम कर रहा हूं। 55 साल से मैं हुकूमत में यानी एमएलए एमपी कुछ ना कुछ आपके आशीर्वाद से मिला है, लेकिन मेरे को ये सजा देते आप, मैं गद्दार हूं, हमारे लोग गद्दार है, ये शर्म आना चाहिए। अगर ये बात रही तो मैं कहूंगा गद्दार आप लोग हैं, जो ब्रिटिश के साथ गद्दारी, देश के साथ गद्दारी की, ब्रिटिशों को सपोर्ट किया, और गद्दारी से आजादी के लड़ाई में आपने कभी हिस्सा नहीं लिया। ऐसे लोग बैठकर आप मजाक कर रहे हो और हमकी धज्जियां उड़ाने की बात करते हो। तो सर, मैं ये कहूंगा कि आप विपक्षी नेताओं को बदनाम करने, ये आपकी असलियत, ये आपका असली चेहरा, चाल और चरित्र, ये सरकार का चैनल दूरदर्शन का 8 मई का प्रोग्राम है। तो इसीलिए जब सरकार का प्रोग्राम ही ऐसा होता है, कितना विष आप में भरा है, कितना पॉइजन आपके इसमें भरा दिल। ये दूरदर्शन 8 मई को अगर आप हाँ में हाँ नहीं मिलाएंगे साहब, आपकी गति मेरे जैसे ही होगी। आप अपनी बात कहें, अब जो कहना है हमारी गति के लिए ध्यान दें प्लीज। सर, बस इस बात के साथ अपना भाषण समाप्त करता हूं। आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, उसके लिए आप सबको धन्यवाद देता हूं। माननीय लीडर ऑफ द हाउस प्लीज। माननीय उपाध्यक्ष जी, अभी माननीय विपक्ष के नेता ने एक लंबा वक्तव्य दिया है। उस वक्तव्य में बहुत सी बातें कही गई हैं, कुछ होम मिनिस्ट्री से संबंधित, कुछ डिफेंस मिनिस्ट्री से संबंधित, कुछ अन्य मिनिस्ट्रियों से संबंधित, सभी जवाब दिए जाएंगे। लेकिन इस डिबेट में उस समय विपक्ष के नेता ने यील्ड नहीं किया, इसलिए मुझे उस समय बीच में बोलने का मौका नहीं मिला। लेकिन मैं देख रहा था कि हमारे बड़े वरिष्ठ नेता हैं और लंबा अनुभव है, लेकिन वक्तव्य में उनके स्टेचर के अनुसार के शब्दों का जो उपयोग होना चाहिए था उसका उपयोग नहीं हुआ। जो शब्दों का उपयोग किया उन्होंने, वो उनके स्तर से नीचे थे। तो इसलिए मैं आपसे पहला निवेदन करूंगा कि उन शब्दों को एक्सपंज कर दिया जाए जो शब्द स्तर विहीन थे। दूसरी बात कि हमारे बड़े वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी पर टिप्पणी की है, मैं इनकी तकलीफ समझ सकता हूं। 11 साल से उनको वहां बैठाए रखा है, and he happens to be the most popular leader of the world. Our Prime Minister is the most popular leader of the world. दुनिया के हमारी पार्टी को गर्व भी है और गौरव भी है, लेकिन अगर वो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, ये पार्टी के लिए गौरव का विषय है, तो देश के लिए भी गौरव का विषय है। लेकिन आप पार्टी से इतने जुड़ गए हैं कि देश का विषय गौण हो जाता है, और इसलिए आपकी तकलीफ में मेंटल बैलेंस खो करके उन शब्दों का प्रयोग और उस तरीके से मैं अपने शब्द वापस लेता हूं।
लिया सब। I take back my words. He has taken back. Yes, I take back my words. he has taken back his words. I have. Please go back to your seat. He has taken back his words. I have taken back my words. अब सुनिए, मानसिक असंतुलन नहीं, भावावेश में ऑन रिकॉर्ड भावावेश कर दीजिए। भावावेश में जो शब्द बोले हैं वो शब्द उनकी पार्टी और उनके व्यक्तित्व से मेल नहीं खाते हैं, उनको निश्चित रूप से एक्सपंज करने की कृपा करें, यही मैं कहना चाहता हूं। प्रमोद तिवारी जी, प्रमोद प्लीज गो बैक, प्लीज। पहले सब लोग जाए। प्रमोद तिवारी जी, आपको मैं बुला रहा हूं, पहले आप सब सीट पे जाए। एक मिनट, पहले सारे लोग सीट पे जाए। नो, आई विल अलाउ ऑल ऑफ यू, प्लीज गो बैक टू योर सीट्स। Please go back. No. Please go back to your seats. No, go back to your seats. He has taken back his words. No, he has taken back his words. Please go back to your seats. Mani Alopi, please go back to your seats. Mani Alopi, सर आप पीछे नहीं जाएंगे, आपसे मनी एलोपी की बात रिकॉर्ड पे नहीं जाएगी। अपनी सीट पर जाए, माननीय। पहले आप अपनी सीट पर जाए, तब माननीय एलोपी बोलेंगे। पहले अपने सीट पर, अपने सीट पर। पहले आप अपनी तो आप नहीं, आप एलोपी को बोलना नहीं देना चाहते, प्लीज माननीय एलोपी आपसे अनुरोध कर रहे हैं, अपनी सीट पर जाइए। आप माननीय एलोपी को बोलने नहीं देना चाहते, प्लीज गो बैक टू योर सीट जी। पहले एक मिनट, माननीय अखिलेश जी प्लीज आप सब लोग अपनी सीट पे बैठे प्लीज। आप बैठे प्लीज, माननीय लोग। सर मैं हमेशा इस सदन में 2-4 मंत्रियों का बहुत आदर करता हूं, जिसमें से नड्डा साहब एक है। उन्होंने अपने शब्द वापस लिए हैं, आपकी सूचना नहीं सुनिए आप जी। नहीं देखिए, और राजनाथ सिंह साहब ऐसे चंद मिनिस्टर्स हैं जो उनका बैलेंस खोए बिना वो बात करते हैं, और मेरे को बोल रहे मेंटल वायलेंस। शब्द वापस हो गया, रिकॉर्ड पे नहीं। मैं तो ये शर्म की बात है, माफी मांगना चाहिए, और मैं जब तक छोड़ने वाला नहीं। धन्यवाद। मैं छोड़ने वाला नहीं है। माफी मांगना चाहिए, मैं ये छोड़ने वाला नहीं। माननीय लीडर ऑफ द हाउस प्लीज। सर मैंने पहले कहा विपक्ष के नेता बहुत ही आदरणीय हैं, हम उनका आदर करते हैं। मैंने शब्द वापस लिए, आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचा है तो मैं उसके लिए क्षमा भी मांगता हूं, लेकिन भावावेश में आप भी बहुत बह गए, इतने बह गए भाई साहब, आप इतने बह गए कि प्रधानमंत्री की गरिमा को भी आप ध्यान नहीं रख पाए। इस बात का हमको दुख है। माननीय सदस्यगण, मैं अगले वक्ता को बुलाऊं, प्लीज आप अपनी सीटों पर बैठे, सभी लोग सीटों। नो, बैठिए। रेखा जी प्लीज टेक बैक योर सीट। रेखा जी प्लीज, श्रीमती रेखा शर्मा प्लीज टेक योर सीट। माननीय सदस्यगण, मैं अगले वक्ता को बुलाऊं, उसके पहले पुनः मैं आपसे 2 अनुरोध करना चाहूंगा। हमने सुबह में आपसे अनुरोध किया था कि सदन की परंपरा और व्यवस्था के अनुसार बहस शुरू होने के आधे घंटे पहले कृपया अपने नाम भेजें, यही परंपरा रही है। अभी शाम तक मेरे पास नाम आते रहे, मैंने जो भी नाम आया उसकी इजाजत दी। कृपया नियम का पालन करिए और समय के तहत अपने बोलने के लिए अपना नाम यहां भेजें। दूसरी चीज कि जब भी अपना नाम भेजते हैं, अगर आप जिस भाषा में बोलना चाहते हैं वो उल्लेख कर देंगे तो सुविधा होगी। मैं श्रीमती सागरिका घोष को आमंत्रित करूं, प्लीज। धन्यवाद माननीय डेप्यूटी चेयरमैन।
অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আমি বক্তব্য রাখতে দাঁড়ালাম। শুরুতেই পেহেলগামের গণহত্যায় যারা শিকার হয়েছেন আর যারা সীমান্তবর্তী এলাকায় সীমান্ত পারে গোলাগুলিতে আহত নিহত হয়েছেন তাদের প্রতি গভীর শোক প্রকাশ করতে চাই। সীমান্তবর্তী এলাকায় পুঁচ, রাজৌরি এবং উড়িতে যারা বাস করেন তাদের সবাইকে আমাদের সমবেদনা, আমাদের সহানুভূতি। আমরা জানি যে এই সদনে আমরা যতই তর্ক করি, যতই বা আলোচনা করি, সেই নিরীহ